तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नो बैन एक्ट की दोस्तों। ये वीडियो हम अंग्रेजी में रखेंगे और हिंदी भाषा में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है नो बैन एक्ट और मुस्लिम देशों से इसका प्रतिबंध हटना कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रभावशाली बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रतिबंध था, ये डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व यूएसए के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस प्रतिबंध को लगाया हुआ था और अब इस प्रतिबंध को नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने हटा दिया है। और इस प्रतिबंध के हटने से किन किन देशों को फायदा हुआ है दोस्तों? इस प्रतिबंध के हटने से मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज को फायदा हुआ है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मुस्लिम कंट्रीज, about the No Ban Act which has been updated by the Joe Biden and in USA, and which has helped a lot of Muslim countries to get the nationality, to get the citizenship of USA, and it has also helped to the people residing over there also. Okay, so now in this video you are going to get a detailed version of this No Ban Act. Okay, तो नो बैन एक्ट जो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रदर्शन चल रहा था यूएसए में। इस प्रदर्शन का नाम था #नो बैन एक्ट। ओके, तो ये देखिए आपके सामने कुछ तख्ती लेके कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो इसमें हम आपको समझाएंगे। So no ban act, it means there are several peoples are working against over this no ban act, and here it is a Muslim advocates are also working on this no ban act, and India is, and so let us understand this no ban act very clearly. So in this no ban act, as many as 140 democratic lawmakers have reintroduced a legislation in the USA Congress to prevent future Muslim bans and prohibition or discrimination on the basis of religion. So 140 Democrats have represented a bill on US Congress. And what is US Congress? Let me tell you, US Congress is a kind of group of people who represent USA, just like in India or in other countries there is a group of people who represent, that is in India it is known as Lok Sabha or it is Rajya Sabha. So in USA it is known by the name of US Congress. So 140 Democrats have presented a bill, and this bill has now been passed. What are the impacts of this bill? So the Muslim travel ban introduced by the former US President Donald Trump targeted several Muslim majority nations and restricted the entry of people from Iran, North Korea, Syria, Libya, Yemen, Somalia, and Venezuela. President Joe Biden ended the Muslim ban on his day in the office last month. So in the House of Representatives, the national origin and anti-discrimination for non-immigrants. How this came, the no ban? So the no means the national origin. Okay, I'm going to tell you about No Ban Act. Okay, so in this no ban, the meaning of N is national, O for origin, B for based, anti-discrimination. It means there should be no discrimination, no differentiation for non-immigrants people. Okay, I hope you get this. So this was introduced on Friday by the House Judiciary Committee Chairman Gerald Nadler and Judy Chu, and it was introduced to the Senator Chris Coons. Okay, and Indian American lawmakers Ami Bera, Rao Khanna, Pramila Jayapal, and Raja Krishnamurthy are among those people who are supporting this bill. Okay, the legislation strengthened the Immigration and Nationality Act to prohibit discrimination on the basis of religion and restore the separations of power by limiting overly broad executive authority to issue further travel bans. So further travel bans have to be removed, and those who are traveling to USA, and they will be given some relief on the basis of this bill. So let me tell you what the people have said, what the senators have to say on this no ban bill, and what they have implicated, and what they have what they have introduced, and what they have to explain about this no ban. So when the Trump administration issued its xenophobic Muslim ban, let me tell you what is xenophobic. This is a Muslim ban which has been categorized as xenophobic. Okay, it was immediately apparent that it was unconstitutional. People call it unconstitutional, discriminatory, and morally reprehensible. I'm grateful that President Biden took bold action on day one to repeal this ban and reunite families. But we cannot risk the possibility of any future president reinstating this heinous policy. Let me tell you guys why this statement has appeared over here, because the people of the USA, or let me tell you very straightforward that the senators of USA do not want that any other US president have this power to pass this no ban act bill. Let me tell you very straightforward that it is a bill that reduces the power of US president. Why I'm making this statement? Because this statement has some logic.
when the bill will be passed, the people of the US president have no have less power to act on the ban on the basis of the religion. So on the basis of religions, no other ban can be implicated or implemented by this US president. For a US president to lift to just ban person, for a US president to ban any person, any country on the basis of religion, he has to he has to tell congressmen over there, okay, and congressmen over there, so that they can pass this bill. And he has to also explain to the people of USA. Okay, so these are the things that have been told over here. And please subscribe my channel. And what Omar said, thankfully President Biden ended this hateful ban on day one of his presidency, but we must ensure that no president can ever ban a group of people from this country based on solely on their religion or nationality. We must ensure that mothers will not be separated from their children, that brothers and sisters will not be torn apart, and that people around the world have a shot at the American dream. I'm proud to work with my colleagues to place the Muslim ban in the dustbin of history where it belongs. अब दोस्तों, ये सब बातें जो मैंने आपको अंग्रेजी में बोली, जल्दी बोली, कैसे भी बोली, आपको समझ में आई नहीं आई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में कुछ चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ। अमेरिकी प्रतिनिधि, जिसको यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसने हाल ही में एक विधेयक पारित किया जो धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा। इसे अनौपचारिक रूप से नो बैन एक्ट कहा जा रहा है। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया? सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित मुस्लिम प्रतिबंध के जवाब में नो बैन एक्ट पारित किया गया, और मुस्लिम प्रतिबंध ने मुस्लिम देशों से मुस्लिमों को अमेरिका के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नो बैन एक्ट का पूर्ण अर्थ क्या है? तो नो बैन एक्ट का पूर्ण रूप है नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो प्रतिबंध लगाने से पहले होमलैंड सुरक्षा विभाग, विदेश विभाग को प्रतिबंध के बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। अब ऐसा है कि अगर आपको इस बिल को पास करना है तो आपको होमलैंड सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को इस बारे में सूचित करना होगा। मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये इस बिल से जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं, उनकी जो पावर है, जो उनकी क्षमताएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं तक जो उनके में डिक्रीज देखा जाएगा। राष्ट्रपति को यात्रा प्रतिबंध के विश्वसनीय खतरे के अपने सबूत पेश करने चाहिए। वह होमलैंड सुरक्षा विभाग और सचिव के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो यह नया तरीका है प्रतिबंध लगाने का कि इन्हें पास करना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, इससे इन्होंने प्रतिबंध लेना हो, इससे इनको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और इन्हें अपना जो है रीजन जो है उसको बहुत ही पुख्ता तरीके से लोगों के उनके सामने रखना होगा, कांग्रेसमैन के सामने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि 2017 में पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रखी गई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह अमेरिकी अदालतों द्वारा 2 बार खारिज किया गया था। हालांकि 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखा था। यात्रा प्रतिबंध शुरू में केवल यमन, सीरिया, ईरान, लीबिया और सोमालिया जैसे देशों पर लागू किया गया था। हालांकि इसके बाद इसका विस्तार इरिट्रिया, म्यांमार, किर्गिस्तान, सूडान, नाइजीरिया और तंजानिया तक कर दिया गया था। अमेरिका में मुसलमान जो है 45 मिलियन से अधिक मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पर कुल मुस्लिम आबादी जो है 1.1% है, और प्रतिवर्ष लगभग 25,000 अमेरिकी नागरिक जो हैं वो इस्लाम में परिवर्तित होते हैं। तो इस डेटा को भी आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मेरा चैनल है इंडियन नीतीश के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं नो बैन एक्ट। इसीलिए मैं एक बार और भी रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार और बता देता हूं कि नो बैन एक्ट है क्या एक्चुअली। तो नो बैन एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो मुस्लिम लोगों पर या मुस्लिम देशों पर एक प्रतिबंध था कि वो यूएसए नहीं जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यूएसए एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर हर इंसान जाना चाहता है, और यहाँ पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो लगभग 1.1% है, और हर साल 25,000 मुस्लिम जो हैं वो मतलब लोग इस्लाम यहाँ पर धारण करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस्लाम को धारण करते हैं और यहाँ पर मुस्लिमों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। तो अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉय बिडेन, तो जॉय बिडेन ये बात
इनको बताई गई कि सर ऐसा है, इस प्रतिबंध को हटाइए, क्योंकि ये प्रतिबंध जो है ये ह्यूमनिटी के लिए गलत है, क्योंकि ये प्रतिबंध जो है ये धर्म के आधार पर लगा है और धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रतिबंध को बिडेन सरकार ने अब हटा दिया है। अब इसको हटा तो दिया था, या मतलब पहले से ही रिस्की कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, यूएस जो कांग्रेसमैन थे इन लोगों ने मिलकर एक बिल को पारित किया। क्या किया, एक बिल पारित किया, एक बिल दिया है, और इस बिल में इन्होंने कहा है कि इस प्रतिबंध को अब कोई भी प्रेसिडेंट लगाने से पहले उसे 2 जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहां से, तो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, होमलैंड सिक्योरिटी से। और प्लस दोस्तों कहां से लेनी पड़ेगी, नंबर 2 पे देखें तो नंबर 2 पे इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी वहां की विदेश मंत्रालय से। ठीक है, जो फॉरेन डिपार्टमेंट होगा वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब यहाँ 2 परमिशन दे देंगे तभी ये कोई इस तरह का बैन आगे एप्लीकेबल होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने दोबारा आपको समझाने की कोशिश की। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बारे में जान सके। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग इन चीज को जानना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ताकि लोग अवेयर हो इन सब चीजों से। और जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जो कि कम आते हैं न्यूज़पेपर्स में, ऐसे टॉपिक के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप तैयार रहिए इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।